चेचेनिया रूसी गणराज्य का हिस्सा है, जिसकी आबादी 13 लाख से कुछ ज्यादा है। इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद चेचेनिया के मौजूदा नेता रमजान कादिरोव और उनकी सेना रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यूक्रेन वॉर जोन में जान की बाजी लगा रहे इन लड़ाकों को देखकर कादिरोव के बयान पर किसी को शक नहीं होता। इस समय चेचेन रूसी फौज में शामिल हैं और यूक्रेन के युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। जहां जहां सबसे घमासान लड़ाइयां हो रही हैं, वहां चेचेन योद्धाओं का नाम आता है। पश्चिमी देश चेचेन योद्धाओं पर युद्ध अपराधों और अत्याचारों के आरोप भी लगा रहे हैं। बूचा और मरियोपोल के कई इलाकों में यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है, जबकि रूस का दावा है कि उसकी सेना की तरफ से कहीं भी कोई युद्ध अपराध नहीं किया गया और ये पश्चिमी देशों और वहां की मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बूचा और मरियोपोल जैसी जगहों पर युद्ध करने वाले कई तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन युद्ध क्षेत्र में गोलियां बरसाने वाले चेचेन लड़ाकों का कहना है कि दुश्मन उनके लिए दुश्मन होता है, लेकिन वहां के लोग उनके दोस्त होते हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी आए जिसमें चेचेन लड़ाके यूक्रेन में बुजुर्गों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं और यूक्रेन के लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात दिखा रहे हैं। रमजान कादिरोव ने जी न्यूज से युद्ध अपराध के आरोपों पर भी खुलकर बात की। So Western media is Western bloc is leveling allegation of atrocities and war crimes committed by Russian troops in Ukraine, around Mariupol and near Kyiv and in many places. And according to media reports, first war crime trial has already begun in Ukraine, and it is one Russian soldier is facing war crime trial there in Ukraine. What is your opinion about it? Это абсолютно ложь, но военнопленные, да, сами об этом говорят, но мы очень много задерживаем их, нам очень жалко их даже становится, да, и хочется, да, быстрее отпускать их домой к семьям, да. Потому что большинство из них, которые с улицы собирали Дон и отправляли Дон на мясорубку Дон. И то, что Россия Дон относится Дон и к военным, и со остальным Дон, ну это же Дон видно Дон. Мы давно Дон уничтожили бы Дон завод Азовсталь Дон. Если мы там не старались бы максимально нести Дон ущерб и государству, и населению Дон. Поэтому я вот со всеми общаюсь с командирами Дон. Я не слышал ни одного преступления, которое совершил бы Дон русский, чеченский, любой воин, который проводит спецоперацию. Это фейки, они сами придумают, у них очень хорошо получается. Американские все лучшие монтеры, там, не знаю, как это, которые умеют монтировать, они всех их отправили, и они снимают фильмы, кадры бывают 20 лет назад, которые сняты, видео бывает 10 лет сняты назад, там они монтируют их и показывают, как будто это было сегодня, И поэтому очень много фейков, Если мы будем верить этим фейкам, то, конечно, да, тогда можно сказать, каждый день совершает преступление. इस युद्ध में दुनिया ने रूस से यूरोपीय देशों की दुश्मनी देखी। अमेरिका के सहयोगियों का रूस पर आर्थिक हमला भी देखा, लेकिन इस युद्ध में एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती का दम भी दिखाई दिया। दुनिया दबाव बनाती रही, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच सच्चे दोस्त रूस का भारत ने साथ नहीं छोड़ा। रूस से भारत में तेल भी आ रहा है और हथियार भी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी कोई भी दबाव भारत को रूस के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया। चेचेन नेता कादिरोव भी भारत की भूमिका को अच्छी तरह समझ रहे हैं। So India has cleared his position on this special operation
since beginning. India is against war, but India has chosen to be abstain from every voting which was opposing Russia's action or condemning Russia in United Nations. What do you think about India's position on this conflict? Ну, на самом деле, Индия один из государств, который имеет свою позицию, да, он, и не смотрит налево, направо, когда принимают решения, да, он. Поэтому мы относимся с уважением к государству Индии и руководству, да, он. И я думаю, что этим мы укрепим, да, он, экономические, политические отношения, да, он. Это выгодно будет для обеих стран, да, мы очень благодарны руководству и народу Индии за то решение, которое они приняли, да, он, нужное, да, он, для нашего государства. साफ है रमजान कादिरोव को भी भारत में एक अच्छा दोस्त दिखाई देता है। चलिए अब यूक्रेन युद्ध से आपको चेचेनिया लेकर चलते हैं, जो पूरी तरह विकसित और प्रगतिशील नजर आता है। इस तस्वीर में आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रमजान कादिरोव के पिता अहमद कादिरोव की भी बड़ी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन रूस और चेचेनिया के बीच संबंधों में उठापटक का एक लंबा दौर भी था, जिसमें दोस्ती भी है और दुश्मनी भी। रूस के जार के साथ चेचेनों ने लंबे युद्ध किए, लेकिन बाद में वो सोवियत संघ में शामिल हुए। सोवियत संघ की सेना के साथ चेचेनों ने नाजी जर्मनी से भी लोहा लिया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के साथ चेचेन के संबंध राजनीतिक उठापटक के रहे। आपने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए चेचेन सैनिकों को देखा। दुनिया में चेचेन लड़ाकों की दहशत है, लेकिन अगर आप चेचेनिया जाएंगे तो आपको चेचेन नागरिकों का एक और रूप देखने को मिलेगा। एक तरफ सबसे घातक हथियार चलाने वाले चेचेन लड़ाके हैं, दूसरी तरफ हाथ में गिटार लेकर सुरीला गीत गाने वाले युवा चेचेन भी। चेचेनिया में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर आपको दूसरे मुस्लिम देशों की तरह पर्दा नजर नहीं आएगा। ये चेचेनिया की राजधानी ग्रोजनी की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इस मस्जिद के सामने भी चेचेन महिलाएं बिना किसी हिजाब के आराम से टहल सकती हैं। किसी भी आधुनिक देश की तरह यहाँ महिलाओं ने मॉडर्न ड्रेस पहन रखी है, पुरुषों के बीच आराम से टहल रही हैं। साफ है, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। धर्म की कट्टरता का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.